Riddhi, Ria told me that you switch on your camera, but you don't know why it is showing you black. Okay, wait. Let me see. सर सेटिंग में होता है कि आप बता। कैमरा ऑफ करते हैं, मतलब ऑफ कर सकते हैं। मतलब मेरे में भी आया था एक बार सेटिंग में कि अगर मैं कैमरा ऑन करूँ तो उसमें सिर्फ ब्लैक दिखेगा सामने वाले को। ऑन करो, सेटिंग चेंज करो। नित्या बोल रही है वो। फाल्गुनी, आई ऑल्सो कांट सी योर फीड। वो सबका फीड दिखना चाहिए, साक्षी पंखा नहीं देखना है मेरे को। फातिमा, किसी और लेक्चर में तेरा वीडियो ऑन होता है? प्रीतेश सर के वगैरह लेक्चर में वीडियो ऑन होता है? क्योंकि सर तो बोलते हैं मेरे लेक्चर में सब ऑन करते हैं वीडियो। रिद्धि, मैंने इसे प्रिया को परमिशन दिया कैमरा ऑफ रखने का, क्योंकि उसने बोला कि मेरे मोबाइल में जेन्युइन इशू है। आई एम गोना कॉल, मेरे पेरेंट्स आपको कॉल करेंगे शाम को। व्हाई यू आर नॉट टर्निंग ऑन योर कैमरा येट? नित्या, यू कैन स्टार्ट। Yeah, so we studied simple things related to path. Now in mean free path, I'm going to tell you. See, this is the diagram, okay? And these are the distances covered. That is lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, and lambda 7. Now these distances are actually the distances that are related to free path. Okay, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इनका एवरेज कैलकुलेट करूंगा, उसी को हम बोलेंगे लैम्बडा एम। ये देखो ब्राउनियन मोशन मैंने नोट्स में भी मेंशन किया है। तो लैम्बडा मीन इज एक्चुअली लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 डॉट डॉट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, we can't hear you. अब क्रैश हो जाता है आईपैड का। मेरे को अगर ऑब्जर्व करना है, सो आई कैन वॉच यू ऑन अनदर मोबाइल। आई एम करेंटली वॉचिंग यू राइट नाउ। ओके, आई हैव जॉइंड इन फ्रॉम अनदर अकाउंट, सो मेरा ध्यान है। Yeah. So this is the formula I was talking about. कि mean free path is equals to 1 upon root 2 pi d square n by b. This d represents diameter of the molecule, capital N represent number of molecules enclosed. आपके system में कितने molecule enclosed है, and b that is volume of the gas. You can clearly see that lambda m is inversely proportional to diameter square. And जो question में बात कर रहा हूँ नीट में आया था, that particular question was based on this relation. आपको डायमीटर दिया था एक मॉलिक्यूल का, दूसरे का डायमीटर भी दिया था, पहले का लैम्बडा 1 बताया था, लैम्बडा 2 फाइंड आउट करना था। तो क्या करना है यार, सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देन यू कैन राइट लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 इक्वल्स टू d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। सी 1 2 का 2 1 हो रहा है, रिलेशन उल्टा हो रहा है। यू नीड टू रिमेंबर दैट लॉजिक। ओके, खुशबू, टर्न ऑन योर कैमरा, यू टर्नड इट ऑन फ्यू मिनट अगो। अली, तेरा कैमरा ऑफ क्यों है? Sheetal, Tanvi, why is your camera up? Veronica? Sir, I do not understand the second part. Which one?
this formula? Yeah, the I have second not formula. I have not told you its derivation at all. I have just given you a random formula. I told you that for mean path, this is one formula, but this is the best way to calculate mean free path. But the problem is that you can't actually measure this lambda 1, lambda 2 accurately, ना? तेरे को molecule पहली बात तो दिखेगा ही नहीं. Yeah. And if you can't see, you can't measure these distances. So they come across a different approach. What they did, they used diameter, number of molecules, and volume, etc. terms in order to get the closer value to mean free path. And this is given by 1 upon under root 2 pi d square n by v, where d is nothing Okay, but sir. if you consider. हाँ बोल. So both of these give me the same values, right? Same thing. Yes. Yes, But correct. the below one is more accurate. No, below one is actually not accurate, but it is, you could say, it gives you approximate closer value to the actual one. Actual value will be obtained by this formula, but the problem is that you cannot measure lambda 1, lambda 2, lambda n. Getting it? तो Yeah. ये प्रॉब्लम है इसमें, तो इसीलिए हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए वी हैव यूज्ड इट. तो हमने क्या किया, मांडवली किया, अप्रोक्सीमेट टू अप्रोक्सीमेट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. Let us now try to move on with the next numerical. See, this is the numerical that is given in the textbook, and they have given it in a different way. मतलब like ना ये थोड़ा सा हटके वाला numerical है. So we are gonna try it. Okay. So what they have given in this particular example, obtain mean free path. That means they want us to calculate lambda m of nitrogen molecule at 0 degree centigrade. First rule of thermal related chapter that I told you, कि अगर आपका टेम्परेचर सिंगल आता है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. आई कन्वर्टेड इट इनटू केल्विन बाय एडिंग 273 इन इट. सो अगर समझो आपका टेम्परेचर 30 डिग्री है सेंटीग्रेड, यू विल ऐड 273 इन इट to get the answer as 303 Kelvin. So in order to convert temperature into degrees in order to convert temperature into Kelvin from degree centigrade, what you have to do, you have to just add 273. So that's what I did. The pressure is given as 1 atmosphere. Again, ATM is not proper unit. Nikita, I can't see you. Pressure is 1 atmosphere, but ATM is not SI unit. So what you do, you actually write it like this. It is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Diameter is picometer के terms में. Pico means 10 raised to minus 12. Can anybody tell me what does nano means? -9. 10 raised to -9. What about micro? 10 raised to -6. -6. Femto? -15. Okay, मतलब है, पढ़ा हुआ है. अच्छा, डेसी? -10. -10? -1. सर डेसी मतलब -1 होता है ना. हाँ करेक्ट, -1 जिसने बोला वो करेक्ट. सेंटी तो सबको पता होगा. -2. -2. यस, वेरी गुड. तो डेसी, सेंटी, ये सारे जो टर्म्स है वो काम में आएंगे. देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स में, जैसे ओवर हियर यू कैन सी दे आर आस्किंग फॉर पिको, राइट? तो आपने क्या किया, पिको 10 raised to -12 में कन्वर्ट किया एंड वी गॉट दिस पर्टिकुलर. अभी डेटा देखोगे ना, तो आपको डेटा जो है ना, मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है लैम्डा एम का डी के टर्म्स में. सो मैंने जो याद है, मेरे को 2 ही फॉर्मूला याद है. एक है डायमीटर के टर्म्स में और दूसरा है वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ब्ला 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 के टर्म में. तो आई हैव चूजन द वन वेयर डायमीटर इज देयर. बट देन आई रियलाइज, अरे लटक गया मैं. क्यों लटक गया? Because I only have diameter, I don't have any other quantity. Like I don't have this n upon v वाला quantity. So what my mind will think, अरे मेरे पास ना वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है, PV equals to nRT. So I will try to use that formula, PV equals to nRT. But the problem is that, ध्यान से सुनो, but the problem is that I don't have any other data which I can use. Like for example, मेरे पास ना प्रेशर है, टेम्परेचर है, बट मेरे पास स्मॉल n नहीं है. सो मेरे दिमाग में आता है कि आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट स्मॉल एन. हमेशा याद रखो, कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेयर एज स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हाँ, बेसिकली वही है, मोल्स. तो नाउ व्हाट यू कैन डू, you have to use the formula PV equals to nRT, correct? So n की जगह you can write capital N upon Na RT, something like that. तो ना आपको क्या क्या चाहिए था वहां पे, इफ यू लुक द फॉर्मूला,
they want you to find out n by v. बोलो, any issue? नहीं ना, ठीक है. तो n by One v second, हमें, one second. हाँ. I understood the PV is equals to N by NART, the thing you substituted. उसके बाद it just went away. नहीं, but I haven't solved anything after that. मैंने बोला कि आपके पास लैम्बडा m का फॉर्मूला है, करेक्ट, which is 1 upon √2. उसके बाद see I forget the formula very easily. √2 pi d square. pi d square. हाँ, तो √2 pi d square n by v. This is the formula. So what my goal is now, I want to find out n by v. तो मैं ये फॉर्मूला से भी इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ एंड मैं ना इसमें n by v के फॉर्मेट में ला सकता हूँ. So I can do that by taking that v to the other side. So this become n by v and taking all other terms to the left hand side. So this will become p na upon rt. See what I did? समझा मैं? No. No, okay. What my goal was to find out n upon v. So what I did, I took this v and put it over here at the bottom. At the same time, I put all other terms to this side. Now is it clear? Yeah. Okay. So what I'm gonna do, instead of this n by v, I'm gonna put this value. Why? Because आपके पास डेटा अवेलेबल है ना सबका. एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, कांस्टेंट है. प्रेशर भी आपको पता ही है, कांस्टेंट ये गिवन है. R का वैल्यू it is constant, so you know it, and temperature is also given. So now you can replace this n by v into more or less like in the format in which you have the data. So this is not NAP upon RT. So now you can put it to get the final answer. अगर आप मेरा ये वाला सॉल्यूशन देखोगे ना, तो इसमें मैंने ना Na के फॉर्मेट में सॉल्व नहीं किया, मैंने Kb के फॉर्मेट में सॉल्व किया. मतलब क्यों? मेरे को तो हाईली अननेसेसरी लगा ये, बट मतलब मैंने वो टाइम पे क्यों सॉल्व किया, आई डोंट इवन नो, बट यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ R आल्सो. शीतल, अगेन योर कैमरा इज ऑफ. समझा मुझे केबी वाला. हाँ, केबी वाला मैंने बताया किधर, अभी बताता हूँ. सो इन दिस पर्टिकुलर केबी वाला लॉजिक मैंने क्या किया, I have taken PV equals to nRT. Okay, then n is n upon Na. Instead of R, that is Avogadro number, I have written it like Na into Kb into T. So what is gonna happen? Na gonna cancel out. So you will get n Kb into T. Okay, so we get PV का value. क्या मिला? n Kb into T. अभी देखो क्या होता है. सर आप हाँ बोलना. सर वहाँ पे Na कैसे आया सर सेकंड टर्म पे सर? n अपॉन Na इंटू Na सर. R को रिप्लेस किया है ना, Na इंटू Kb. आज ही के लेक्चर में तो मैंने बताया था. देखो ऊपर किधर बताया था, किधर, तो यहाँ पे देखो R इक्वल्स टू Na इंटू Kb. मैंने मल्टीप्लाई करके 8.314 भी बताया था. So basically I have given you this formula which I have used to solve it. So आपने क्या किया, वो सब्स्टिट्यूट किया that particular term. So once you substitute that particular term, okay, that is R का value. किधर गया वो, sorry, over here. So you get R के जगह Na into Kb, तो Na cancel, you get PV equals to n kBt. Then your goal was to find out n by V, so you take V to the other side and P upon kBt to this. So you can Na by V के जगह ये put कर सकते हो rather than वो जो मैंने पहले put किया. तो दोनों मेथड में you will get the exact same answer, you don't have to worry about it. Okay, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Is it clear? मैं तेरा कैमरा ऑफ हो गया. Sir, see the chat box. I can't see that, you know, my screen sharing is on. So whatever you have typed, everyone will see. It's fine. You can switch it off for 5 minutes. After that, you have to join. Yeah, thank you. Fatima, I still can't see your output, video output.
एंड यू आल्सो हैवंट आंसर्ड मी। बाकी के लेक्चर में तेरा कैमरा ऑन रहता है क्या? बोल ना। सर इस पहले वाले में हम लोग ने सिर्फ n को रिप्लेस किया था, नंबर ऑफ मोड्स, और इसमें r को भी किया नहीं। टाइम पास के लिए दोनों में चलता है, दोनों में तेरे को आंसर मिलेगा। यू कैन से दिस इज अल्टरनेट मेथड बस। मतलब वो टाइम पे मैंने थोड़ा लेंदी अप्रोच किया, लेंदी ऐसा नहीं, दोनों अप्रोच ऑलमोस्ट सेम लेंथ के थे, बट एट दैट टाइम आई डोंट नो कि मैंने ये सॉल्व क्यों किया, बट यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ना केबी के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला मिल जाता है, अगर आप एन वो पुट करोगे ना तो आई थिंक, हाँ या यू कैन ट्राई फ्रॉम अनदर फोन फातिमा। So you get this particular answer, lambda m kbt root 2 pi d square p. Okay. Now comes the lengthiest derivation in the history of entire 12th boards. Like why I'm calling it lengthiest, now you will understand why. 1, 2, 3, 4, keep on the terms. So total there are 4 pages of derivation. Okay. So I'll go as smoothly as possible. I want everyone to understand it. Okay. तो एकदम प्रॉपरली जाएंगे, एकदम समझेंगे, क्योंकि डेरिवेशन को ही टाइम जाएगा, बट दिस डेरिवेशन ट्रस्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये मैं ऐसे वे में सिखा रहा हूँ कि आप इसको बोर्ड में भी यूज कर सकते हो, किसमें बोर्ड्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, एंड एट द सेम टाइम इसका, हाँ बोर्ड्स में आएगा ना, एनसीईआरटी में भी इट इज गिवन, बट दे हैव गिवन इट इन द शॉर्ट वे। एक शॉर्ट वे इन द सेंस वो पता है ना, आधे से ज्यादा स्टेप स्किप करते हैं, द सेम वे, बट ओवर हियर आई हैव गिवन इट इन सच अ वे दैट आपको हर एक स्टेप समझेगा, तो मैंने कुछ स्किप नहीं किया, ऐसा वे है ये। तो योर चॉइस, वंस यू अंडरस्टैंड इट यू कैन डू हाउएवर यू वांट। समझा? मार्क्स नहीं करेंगे, खाली इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी पड़ेगी। So we are actually going to find out pressure that a gas can produce. अच्छा, तुम लोगों को सच्ची पूछो, आपने केमिस्ट्री में भी बहुत बार प्रेशर सुना होगा, बट प्रेशर एग्जैक्टली प्रोड्यूस कैसे होता है, किसी को पता है? फोर्स अपॉन लगाकर। क्या फोर्स लगाकर? ओके ठीक है, तो प्रेशर इज फोर्स इंटरनल, मतलब इंटरनल फोर्स और मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन से। अच्छा, सो यू आर सेइंग कि देयर एग्जिस्ट इंटरनल फोर्स, बट ये इंटरनल फोर्स कौन जनरेट करता है? Molecules. Yeah, definitely molecules. So molecules generate If internal it's force. solids, then the particles that are vibrating. No. It's not because of vibration. तो वाइब्रेशन जो होता है, हाँ, जो रैंडम मोशन दिया ना, ब्राउनियन मोशन, बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। अभी क्या होता है, मैंने याद है तुमको बोला था कि मॉलिक्यूल्स कंटेनर के साथ कोलाइड होते हैं। डू यू रिमेम्बर? हैव आई टोल्ड यू दिस? ओके, अभी समझो ये मॉलिक्यूल है ना, मस्त एकदम जा रहा है, इसके पास वेलोसिटी है v1, डक 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 डक, कोलाइड हुआ। आफ्टर कोलिजन इट विल बाउंस बैक, है ना? तो ये बाउंस होगा डक 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 डक, एंड देन इट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेट्स से इन बिटवीन ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड ही नहीं हुआ, whatever is happening is between this molecule and this wall. Okay, see, if this particular molecule has velocity and if this particular molecule has mass, then we can say this molecule has mass and velocity, Kinetic momentum. कैसे काइनेटिक एनर्जी? पहले तो मोमेंटम दिमाग में आना चाहिए आपके। तो मास इनटू वेलोसिटी आपको देगा इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो ये आपको मिलेगा इनिशियल, क्योंकि क्यों, पहले अभी वो कोलाइड नहीं हुआ ना, कोलाइड के पहले वाला, तो इनिशियल, सो दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। कोलाइड के बाद में इसके पास मोमेंटम होगा। ओके, सो लेट अस से p final, so final momentum is m into v2. Now you can easily calculate change in momentum, that is delta p. It is final momentum minus initial momentum. So what you can do, you can write it as mv2. Okay, अभी ये mv2 ना लेफ्ट साइड जा रहा है, हाँ लेफ्ट साइड जा रहा है तो निगेटिव, सो माइनस mv2 माइनस mv1 राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव mv1। फिर से देखो, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, बट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शन। तो जैसे अभी आप देखो ना, यहाँ पे डायरेक्शन मैंने क्या लिया, पुरोहित तेरा वीडियो नहीं दिख रहा है मेरे को, अर्शिया, वैभवी,
बहुत टाइम हो गया, मैंने नोटिस किया है तेरा वीडियो ऑफ है। तू वेट कर रही थी क्या कि सर मेरा नाम ले तभी ऑन करूंगी? तुम टाइम पास करते हो मेरा लेक्चर में 2 मिनट के लिए। और शालू तू कितने स्लो बोलती है यार, माइक्रोफोन तो दूसरा वाला ले ले, हेडफोन ले ले, नहीं तो एक तो माइक्रोफोन मुंह के पास रख के बोल। -MV2 -MV1, ओके। माइनस क्यों? क्योंकि इट इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो नेगेटिव। और ये माइनस क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला में था। तो यू बेसिकली गेट समथिंग लाइक दिस, -MV2 + V1। तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। ये सारी चीजें जाने तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल मोमेंटम लूज करता है, मॉलिक्यूल ने अपना कुछ लूज किया कोलिजन में। अगर मॉलिक्यूल मोमेंटम लूज कर रहा है तो गेन किसने किया होगा रे? वॉल ने। वेरी गुड, क्योंकि कोलिजन किसके साथ हुआ? वॉल के साथ। तो मॉलिक्यूल अगर कुछ लूज कर रहा है तो वो देगा किसको? वॉल को देगा। एंड दैट इज व्हाई यू कैन से दैट डेल्टा पी और मोमेंटम गेन बाय वॉल इज प्लस इसके अपोजिट। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? लूज। पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? गेन। So we get the formula as +MV2 + V1. I'm assuming that these velocities are different, but actual में हम लोग सेम लेते हैं उनको, वो बाद में देख लेंगे। अभी ये हो गया डेल्टा P. What if I calculate change in momentum with respect to time? What is this? फोर्स Force. Very good. Then what if I calculate this force for a specific area of the wall? What will I get? प्रेशर Now, do you understand how the molecule is actually contributing in pressure? समझा क्या होता है? मॉलिक्यूल जाता है, कोलाइड होता है। जैसे वो कोलाइड होता है तो वो मोमेंटम एक्सचेंज कर रहा है। अगर ये मोमेंटम को हम लोग यूनिफॉर्म टाइम में देखेंगे या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे, वी गेट फोर्स। अगर इस फोर्स को हम लोग ओवर द एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये वॉल जो है वो 2D होता है ना, ये एरिया हुआ फिर, तो दैट मीन्स ये एरिया के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो आपको प्रेशर मिलेगा। अभी क्लियर हुआ कंसेप्ट कि कैसे सर गैस वेलोसिटीज की डिफरेंटली कांस्टेंट होती है। हाँ, वो कांस्टेंट नहीं, वो यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिए क्योंकि इट इज पॉसिबल दैट वेलोसिटी माइट फ्लक्चुएट। समझ रहे? तो ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पढ़े। अभी क्या करना है? अभी डेरिवेशन देखना है। ये डेरिवेशन नहीं था, दिस इज जस्ट आइडिया कि प्रेशर कैसे अप्लाई होता है। अभी डेरिवेशन पढ़ेंगे। सो प्रेशर क्यों होता है गैसेस में? सो बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, and because of the Brownian motion these molecules collide with the wall, and what is gonna happen once they collide with the wall? They are gonna create pressure. Okay, chalo let's try to understand it in the depth. क्या करेंगे? एक कंटेनर लेंगे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम वेरी केयरफुली, एकदम प्रॉपरली देखना है। इस कंटेनर में एक्चुअली देयर इज अ मॉलिक्यूल जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है। हाँ, बाय द वे ये कंटेनर को मैंने एक्सिस बनाया, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, और उसी के ओरिजिन पे कंटेनर रखा है मैंने। लेट अस कंसिडर अ मॉलिक्यूल ओवर हियर, ओके, and this molecule is actually moving along x direction with the velocity vx1। जैसे ये मॉलिक्यूल कोलाइड होता है डॉट 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 डॉट, यहाँ पे दिख रहा है ये वॉल, यहाँ पे कोलाइड होके वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। सो मैं अभी इसको बोलूंगा -vx1। ओके, सो जाते वक्त स्पीड था vx1, आते वक्त -vx1। ओके, अगर समझो यही मॉलिक्यूल y डायरेक्शन में जाता तो क्या होता स्पीड? y तो यहाँ है ना, vy1। अगर समझो ऊपर z डायरेक्शन में जाता तो vz1। इज इट अंडरस्टैंड क्या? हाँ, मतलब 3 डायरेक्शन है, एक x की डायरेक्शन, एक y एंड एक z की डायरेक्शन। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना कि मॉलिक्यूल सिर्फ x के डायरेक्शन में जाएगा, अभी वो थोड़ी मेरा सुनेगा। एज आई सेड कि देयर इज रैंडम मोशन एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी इन chaos, करेक्ट? So now if the molecules are already in chaos, they can move in any random direction. So it is possible कि आपका molecule 3 dimensional motion भी करे,
जैसे वो x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी जा सकता है साइमल्टेनियसली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मेरा क्यों सुनेगा? मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि ये x के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट व्हाई शुड इट लिसन टू मी? वो तो रैंडम डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट मीन्स अ मॉलिक्यूल कैन एक्चुअली हैव अ वेलोसिटी दैट इज अलोंग x, तो vxi, along y that is vyj and along z that is vzk। आपको याद है ऐसे हम लोग वेक्टर लिखते थे 11th वाला टॉपिक? डू यू रिमेम्बर इट? Yes. Yes, sir. Okay, ijk represents, I represent unit vector along x axis, j, y and k, z। Z। बस यही आपको अगर समझना है। और उसके बाद क्या करना है, समझो ये मॉलिक्यूल 1 का स्पीड है, हाँ? तो मैंने उसको x के साथ भी कंपेयर किया, y के साथ भी कंपेयर किया और z के साथ। नाउ इफ आई डिसाइड टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द फॉर्मूला? आप अंडर रूट लेते हो, देन i के साथ जो टर्म होगा उसका स्क्वायर, प्लस j के साथ जो टर्म होगा उसका स्क्वायर, प्लस k के साथ जो टर्म होगा उसका स्क्वायर। सो यू राइट इट लाइक दिस, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ओके, अगर समझो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। यू विल गेट v1 स्क्वायर vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। नाउ देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो आपने एक मॉलिक्यूल के लिए देखा, दूसरा मॉलिक्यूल कहीं पे इधर पे है, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में घूम रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल कहीं पे ऐसे जा रहा है, तो आपको हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड मिलेगा ना डिफरेंट डिफरेंट। सो यू कैन राइट v2 स्क्वायर इन द सिमिलर अप्रोच। जैसे यहाँ पे vx1 लिखा, इधर vx2 लिखा, इधर vy1 लिखा, इधर vy2 लिखा, इधर vz1 लिखा, इधर vz2 लिखा। सेम कैन हैपन फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो लास्ट होगा उसको n बोला। तो इफ देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स, आई विल राइट v10 ओवर हियर। सो vx10, vy10 एंड vz10। इज इट क्लियर? क्या ये पहला स्टेप आपको समझा है? या यस ओके, अच्छा ये अच्छा आंसर है यॉर्निंग करके यस बोलने का। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कांसेप्ट नाउ। सर आगे कंटिन्यू बोलना। करना है पूरा, तो आप दूसरा मीटिंग कर लो ना, 5 मिनट ही बाकी है। 5 मिनट में बट देन लेक्चर एंड हो जाएगा, 8:55 को एंड हो जाएगा, तो आई डोंट वांट दैट कि आप लास्ट 5 मिनट के लिए जल्दी ज्वाइन, मतलब तो इसीलिए अभी कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ट्रैवल। अच्छा अभी अभी आपको स्टेप 1 समझा कि हम लोगों ने इक्वेशन यूज किया, इसको टोटल को इक्वेशन 1 बोला। एंड इफ यू आर कॉलिंग इट इक्वेशन 1, रिमेंबर इट, आई एम गोइंग टू यूज इट लेटर ऑन। ओके, तो ये जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑब्जर्व करना, ये मैं बाद में यूज करने वाला हूँ। ओके, now let's try to move on to the next formula. Molecule travel from wall PQRS to P dash Q dash R dash S dash and then returns to original location। मतलब मॉलिक्यूल इधर से जर्नी स्टार्ट करता है, डॉट 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 आता है, इधर कोलाइड होता है, देन डॉट 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 करके रिटर्न जाता है। तो अगर समझो ये डिस्टेंस L हुआ, तो मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस कवर किया रे टोटल? 12। 2L, वेरी इजी। जाते वक्त L, आते वक्त L, so the total distance covered by molecule is nothing but 2L। हाँ बोल। दोनों कैंसिल नहीं होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ए महान लड़की, डिस्टेंस कहाँ पे कैंसिल होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इजंट इट? ओके, तो अभी अभी ना मैं क्या करूंगा, वही लॉजिक यूज करूंगा। अभी मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा। याद है आपको वो लॉजिक सिखाया? पहले इनिशियल मोमेंटम, फिर फाइनल मोमेंटम, फिर चेंज इन फाइनल मोमेंटम, फिर अपॉन टाइम एंड फोर्स मिलेगा। याद है? समझा लॉजिक? Yes. वही मैं अभी सॉल्व करूंगा। देखो पहले फाइंड आउट करते हैं इनिशियल मोमेंटम। दैट मीन्स मास आएगा और ये जो मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है वो आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम हुआ vx1। What about final momentum? So that will be m into final velocity, which is minus vx1। देखो final velocity minus vx1 है, तो this will be minus m into vx1। तो मिल गया आपको। After that, what is gonna happen? आपको change in momentum calculate करना है। That is final momentum minus initial momentum। So आपको मिलेगा, ये देखो final लिखा और ये initial लिखा। माइनस ऑफ माइनस इज ऑल्सो माइनस, बट मतलब एडिशन होता है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस ऐड हुआ, तो दैट इज -2 टाइम्स mvx1। सो आपको मोमेंटम मिला। बट याद रखना डियर,
ये मोमेंटम अलोंग एक्स जा रहा है। क्या जा रहा है ये? अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो अभी ये मोमेंटम क्या था? लूज किया हुआ मोमेंटम। तो वॉल ने कितना गेन किया? वॉल ने प्लस में गेन किया। तो इट्स लाइक दिस, अगर समझो मॉलिक्यूल -10 मोमेंटम लूज करता है तो वॉल +10 गेन करता है। जितना मॉलिक्यूल ने लूज किया उतना। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल -2mvx1 लूज कर रहा है तो वॉल ने कितना गेन किया? +2mvx1। तो क्या आपको ये स्टेप तक समझा? Yes. Yes. Okay, now let's move on to the third step. Velocity, let's say speed, is actually distance upon time that we already know, बहुत टाइम से पढ़ा। आप ही ने बोला कि मॉलिक्यूल 2l जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो मैंने डिस्टेंस 2l लिया। टाइम को मैंने डेल्टा टी लिखा बिकॉज इट इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मॉलिक्यूल बहुत फास्ट होता है तो डेल्टा टी मिला। व्हाट वी आर गोना डू इज हम लोग डेल्टा टी को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, vx1 यहाँ पे लेंगे, सो बेसिकली क्रॉस। सो डेल्टा टी हो गया 2l अपॉन vx1। नाउ लेट्स यूज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको डेल्टा px ऑलरेडी पता है, दैट इज 2mvx1। सो आई एम गोना राइट 2mvx1। आपको टाइम ऑलरेडी पता है विच इज 2l अपॉन vx1। सो आई एम गोना राइट दैट। क्या होगा फिर? 2 कैंसिल होगा और ये जो vx1 है वो ऊपर आएगा। अरे यार, नहीं आवाज आ रहा है मेरा? आ रही है। आ रहा है सर आपका। हाँ ओके ठीक है। झलक वीडियो क्यों ऑफ है आपका? फातिमा, आपने अभी तक दूसरे फोन से ट्राई नहीं किया? Still can't see you. ठीक है, do something about it. हाँ, तो क्या हो गया? डेल्टा पी एक्स आपको मिला 2mvx1 अपॉन डेल्टा टी क्या मिला? 2l अपॉन vx1। ओके, सो 2 विल गेट कैंसिल, vx1 ऊपर आएगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा mvx1 स्क्वायर अपॉन l। ओके, क्या यहाँ तक आपको समझा? fx1 तक? Yes. Yes. ओके, बिंदेश्वरी योर वीडियो इज ऑफ। चेतना योर वीडियो इज ऑफ। you are tired of it। ठीक है, अभी क्या कर